क्लासेस आप सबका स्वागत है प्रिंकल स्टडी क्लासेस में। बहुत ही जल्द जो है आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं। मैं लाया हूँ पॉलिटिकल साइंस क्लास 11 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को, पार्ट ए एंड पार्ट बी के। जो भी मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करवाऊंगा, बताऊंगा, प्लीज उस क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपके 100% बोलता हूँ कि आपका एग्जाम ये इसके इन्हीं क्वेश्चंस में से जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स जो है क्वेश्चंस को रेपिटेशन किया जाता है। तो इसी कारण मैंने ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। कौन से चैप्टर कितने मार्क्स का, किसके कैसे क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है, वो मैं सब इस वीडियो में बताने वाला हूँ। प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि इस वीडियो को स्किप मत करना। ओके, लेट्स बिगिन नाउ। पॉलिटिकल साइंस पार्ट ए, उसका फर्स्ट चैप्टर जो है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आपको 3 नंबर, जिसका कोई भी क्वेश्चन होगा वो आपको 3 मैक्सिमम 3 मार्क्स का जो है आपको प्रिपरेशन करनी है। सेकंड चैप्टर जो है फंडामेंटल राइट्स है, जो कि आपको 5 मार्क्स का जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद जो है सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशनल डेमोक्रेसी, जो कि 6 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो ये 3 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पहले मैं डिस्कस करने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, इन तीनों चैप्टर्स के मैंने मिक्सअप क्वेश्चंस बनाए हैं, आप देख लेना, इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द वेरियस सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द राइट्स टू फ्रीडम एज enjoyed by the Indian Constitution. Question number 3, discuss the relationship between fundamental rights and directive principles of state policy. Question number 4, discuss the role and functions of Election Commission of India. Question number 5, why do we respect our constitution? Question number 6, describe the need for a constitution. Question number 7, how is right to freedom of religion, Article 25 to 28, a guarantee of secularism by the Indian Constitution? It's a very important question. Question number 8, has India's election system been really effective? Elucidate. Question number 9, what are the fundamental rights as enshrined in Indian Constitution? Question number 10, what are the fundamental duties as enshrined in Indian Constitution? Question number 11, what are the various electoral reforms to ensure free and fair elections? It's a very, very important question. Question number 12, explain the election procedure prevalent in India. Question number 13, what are the different methods of election? फर्स्ट 3 चैप्टर्स आपको टोटल 13 क्वेश्चन जो है प्रिपरेशन कर लेना है। उसके बाद जो है आपका आएगा चैप्टर नंबर 4 एंड 5, यूनिट 2 में आपके चैप्टर 4, 5 एंड 6 होंगे, और इन सब के क्वेश्चंस बता लूंगा। 4 और 5 को कंबाइन करके 14 क्वेश्चंस है, और 6 चैप्टर के भी मैं आपको बताता हूँ। 4th चैप्टर एग्जीक्यूटिव इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम, जिसमें से 4 मार्क्स जो है आपको क्वेश्चन प्रिपरेशन कर लेना है। चैप्टर नंबर 5, लेजिस्लेचर एट द स्टेट एंड द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल, 4 मार्क्स का क्वेश्चन प्रिपरेशन कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब 4 मेन फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। Question number 2, write briefly the composition and functions of Gram Sabha. Question number 3, what are the powers of the President of India in normal times? Question number 4, write down the powers of the Governor of the state, when Governor can use his discretionary powers. Question number 5, differentiate between money bill and non-money bill. Question number 6, write down functions of Sarpanch of a Panchayat. Question number 7, write down 4 important functions of legislature. Question number 8, what is Panchayat Raj? Name 3 organs of Rajya Sabha. Question number 9, what is a bicameral and unicameral legislature? Explain 0 or briefly. Question number 10, which house of parliament is more powerful and why? Question number 11, discuss the position and powers of Prime Minister of India. Question number 12, discuss the powers and position of Indian cabinet. Question number 13, what are the powers of Council of Ministers? Question number 14, examine the actual powers and functions of the Chief Minister. तो इसका अब 6 चैप्टर बोलूंगा, इसका 6 चैप्टर के क्वेश्चंस को मैं बताने वाला हूं, 6 चैप्टर के क्वेश्चंस को बताने वाला हूं। तो यूनिट सेकंड से ही है, जो कि आपको 4 मार्क्स का प्रिपरेशन कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज जडिशरी? व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ जडिशरी? क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जुडिशियल रिव्यू? क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज रूल ऑफ लॉ? व्हाट आर इट्स मेरिट्स? क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट। Question number 5, A part, explain judicial activism. B part, what is public interest litigation? उसके बाद यूनिट 3 से चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 8,
चैप्टर नंबर 7 फेडरलिज्म, जिसका 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपको प्रिपरेशन कर लेना है, और चैप्टर नंबर 8 लोकल गवर्नमेंट का 4 मार्क्स का क्वेश्चन प्रिपरेशन कर लेना है, जिनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए हैं 5। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन 4 फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट गिव इट अ फेडरल कैरेक्टर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज अ यूनाइटरी गवर्नमेंट? डिफरेंशिएट बिटवीन यूनाइटरी एंड फेडरल गवर्नमेंट। हाउ इज इंडिया a quasi-federal state? Question number 4. Why do we need decentralization of powers at local level? What are its merits? Question number 5. What are the basic features of urban local government? उसके बाद इस पार्ट ए के जो है लास्ट चैप्टर्स आ गए, चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 9 जो है आपको पूछ लिया जाएगा 2 मार्क्स का, और चैप्टर नंबर 10 भी आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन प्रिपरेशन कर लेना है। चैप्टर नंबर 9 पॉलिटिकल फिलोसफी अंडरलाइंग द कॉन्स्टिट्यूशन। चैप्टर नंबर 10 कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट? Question number 2, what are the core provisions of the Constitution of India? Question number 3, what are the visions underlying the core provision? Question number 4, how has the Constitution changed since its inception? ये रहा आपका पार्ट ए। अब हम डिस्कस करेंगे पार्ट बी के बारे में। पार्ट बी में जो पहले 3 चैप्टर्स के बारे में बताने वाला हूँ। फर्स्ट चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, जिसके 4 मार्क्स का क्वेश्चन प्रिपरेशन कर लेना है। चैप्टर नंबर 2 आएगा फ्रीडम, 6 मार्क्स का क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। चैप्टर नंबर 3 इक्वालिटी, जिसका भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन प्रिपरेशन कर लेना है। पहले 3 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक इक्वालिटी? क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज पॉलिटिक्स? क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज इक्वालिटी? क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल इक्वालिटी? क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी? क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज नेचुरल इक्वालिटी? Question number 7, what is political inequality? Question number 8, what are the forms of inequality? Question number 9, write any 2 measures to remove economic inequality. Question number 10, discuss nature and scope of political theory. ये 10 क्वेश्चन जो है आपको फर्स्ट 3 चैप्टर से प्रिपेयर कर लेने हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 4 सोशल जस्टिस, उसका 6 मार्क्स का प्रिपेयर करना है। चैप्टर नंबर 5 राइट्स, 4 मार्क्स का। चैप्टर नंबर 6 सिटीजनशिप, जिसका 4 मार्क्स का क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेना है, जिनमें से मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको करना है व्हाट आर राइट्स, एक्सप्लेन डिफरेंट काइंड्स ऑफ राइट्स। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्टिंग्विश बिटवीन सिटीजन एंड एलियन। क्वेश्चन नंबर 3, राइट 2 गुड क्वालिटीज ऑफ ए सिटीजनशिप। Question number 4, what is naturalized citizenship? Question number 5, write 2 ways by which citizenship can be lost. Question number 6, how poverty is a hindrance to a good citizenship. Question number 7, what is justice? Question number 8, what is citizenship? उसके बाद question number 9, how can we secure legal justice? Question number 10, what is global citizenship? Question number 11, what is CAA, Citizenship Amendment Act? Question number 12, what is political justice? Question number 13, what do you mean by natural born citizen? उसके बाद लास्ट चैप्टर जो है पार्ट बी में, चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 8, नेशनलिज्म एंड सेकुलरिज्म। नेशनलिज्म 4 मार्क्स का एंड सेकुलरिज्म 6 मार्क्स का प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 1 करना है व्हाट डू यू मीन बाय नेशनलिज्म, मैरिट्स एंड डिमेरिट्स। इज क्वेश्चन नंबर 2, इज इंडिया ए सेकुलर स्टेट, गिव आर्गुमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू मीन बाय इंडियन एंड वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म। Question number 4, what are fundamental principles of secularism? Discuss in detail. Question number 5, what are the main hindrances in the development of nationalism? How can they be removed? Question number 6, explain the main characteristics of secularism. Question number 7, what is the basis of right to self-determination? Question number 8, what is the main features of nationalism? ये रहे आपके पार्ट ए एंड पार्ट बी के क्वेश्चन आंसर्स। आपको अच्छे से 2024 के लिए प्रिपरेशन कर लेना है। आपके एग्जाम्स में मैक्सिमम यही क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। अगर आपको पोजीशन लेनी है तो आपको इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। तो प्लीज़ अपने फ्रेंड तक इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो को वॉच कर सके। और गाइस लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल प्रिंकल स्टडी क्लासेस को, बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन करें ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप बच्चों तक पहुंच सके। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ।